नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज़ लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद पावन और सुंदर पर्व की, बसंती पूजा, जिसे चैत्र दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्सव वसंत ऋतु में मनाया जाता है और मां दुर्गा की आराधना का विशेष समय होता है। दुर्गा पूजा वर्ष में 2 बार आती है, एक बार चैत्र महीने में और दूसरी बार अश्विन माह में। दोनों ही नवरात्रि के दौरान मनाई जाती है, लेकिन बसंती पूजा प्रकृति के नवजीवन और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि इन दिनों मां दुर्गा पृथ्वी पर अपने मायके आती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। यह पर्व छठे दिन से शुरू होकर नौवीं तक चलता है और दशमी के दिन मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, जो उनके स्वर्गलोक लौटने का प्रतीक है। शारदीय दुर्गा पूजा को अकाल बोधन के नाम से भी जाना जाता है। अकाल का अर्थ है असमय और बोधन का अर्थ है उपासना। बसंती पूजा हमें शक्ति, भक्ति और नव आरंभ का संदेश देती है। দুর্গাপুজো আধুনিক যুগে সাধারণত শরৎকালে সর্বভারতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত করা হয়। দ্যাট ইজ ইন দ্য মান্থ অফ সেপ্টেম্বর অ্যান্ড অক্টোবর। কিন্তু এরই মধ্যে চৈত্র মাসে আরও একটি দুর্গাপুজো উদযাপন করা হয়। এই পুজো বসন্তকালে অনুষ্ঠিত করা হয়, তাই এই পুজোর নাম বাসন্তী পুজো। आदितेयभीहरं शूरारिदैत्यनाशकम् शाहुशिष्टकामदं महिषुहारहारकम् চৈত্র দুর্গাপুজো হলো প্রকৃত দুর্গাপুজো, যা অকাল বোধনের চেয়েও বহু আগে শুরু হয়েছিল। আশ্বিন মাসে পালিত দুর্গাপুজো অকাল বোধন নামে পরিচিত। অকাল অর্থাৎ অসময় এবং বোধন অর্থাৎ পুজো। রাবণ যখন সীতামাকে অপহরণ করেছিল, তখন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধতে জয়ী হওয়ার জন্য শ্রী রামচন্দ্র আদিশক্তি মা দুর্গার উপাসনা করেছে। এটি অকাল বোধন নামে পরিচিত হয়েছে। ষষ্ঠীতে দেবী বোধন থেকে বাসন্তী পুজোর শুভারম্ভ হয়। এই ষষ্ঠীর দিনেই মৃন্ময় রূপ থেকে চিন্ময়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হন দেবী। প্রায় 6 বছর আগে থেকে, এর মধ্যে 1 বছর কোভিডের জন্য আমরা অনুষ্ঠিত করতে পারিনি।
প্রভিডেন্ট ফ্যামিলি ছিল, তাই জন্য আমাদের সবাই কাজানের, বিশেষ করে আমাদের যার গুরু ভাই বা বোনেরা আছে, আমরা বিশেষ করে গুরু ভাইরা 90%ই বিজনেসম্যান, তাই ওনারা শরৎকালে যেটা পুজো হয় সেই পুজো আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না, সবাই বিজনেসে ব্যস্ত থাকেন। তাই আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি আমরা এই পুজোটা করিয়ে এই সময়টাতে ওনারাও সময় দিতে পারবেন। আর বিশেষ করে জানে বাসন্তী পূজা আর কোথাও হয় না, শুধু আমাদের রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতেই অনুষ্ঠিত হয় আর খুব জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়। তার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা বাসন্তী পূজা প্রতি বছর করব আর খুব আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই পূজা প্রতি বছর হয়ে আসছে। নমো দেবায় মহাদেবায় শিবায় সততং নমঃ নমঃ প্রভৃতায় ভদ্রায় নিয়তঃ প্রণতঃ স্মতং রুদ্রায় নমো নিত্যায় গৌরজয় ধাত্রয় নমো নমঃ জ্যোৎস্নায় চন্দ্ররূপিণ্যয় সুখায় সততং নমঃ কল্যাণয় প্রণতাবৃদ্ধয় সিদ্ধৈ কুর্মো নমো নমঃ নৈরিত্যং ভুক্তাং লক্ষ্মৈ সর্বান্নৈতে নমো নমঃ দুর্গায় দুর্গোপাল। বাসন্তী পূজা হচ্ছে শরৎকালে যেটা পূজা করে সে রামচন্দ্র করেছিলেন, আর এই পুজোটা করেছিলেন সুরত রাজা। ওনার রাজ্য ওনার হাত থেকে চলে গিয়েছিলেন, তার জন্য উনি সেটাকে ঘুরিয়ে পাওয়ার জন্য উনি ওনাকে ইয়ে দিয়েছিলেন, তপস্যা করে উনি সেটা আরম্ভ করেছিলেন এই বাসন্তী পুজো। অ্যাকচুয়ালি বাসন্তী পুজোটাই আসলে আমাদের দুর্গা পূজার মেন পূজা, কিন্তু এটা অত জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত না হয়ে রামচন্দ্র পূজা করেছিলেন শরৎকালের পুজোটাও বেশি জাঁকজমক। শ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে প্রতি বছরের মতো এই বছর নানান প্রতিযোগিতা যেমন উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, আরতি ইত্যাদি আয়োজিত হয়েছে। বাসন্তী পুজো অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত একটি পুজো। মার্কণ্ড পুরাণে বাসন্তী পুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুরাণ অনুযায়ী রাজা সুরথই প্রথম চৈত্র মাসে মা দুর্গার পুজো করেছিলেন। রাজা সুরথ ছিলেন বঙ্গদেশের শাসক। তিনি ছিলেন মা দুর্গার একজন অনন্য ভক্ত। সেই সময় তিনি দেবীর কথা পৃথিবীবাসীদের কাছে প্রচার করেছিলেন। একটি যুদ্ধে রাজা সুরথ পরাজয় হওয়ার পর তিনি রাজ পরিবার এবং অন্যান্য সদস্য দ্বারা প্রতারিত হন। এরপর তিনি নিজ রাজধানী বলিপুর ছেড়ে চলে যান বর্তমানের বোলপুর। বৈশ্য সমাধি নামে একজনের সাথে রাজা দেখা করলেন। তারা দুজন একসঙ্গে সুমেধ সুমনির সাথে দেখা করেছিলেন। সুমেধ সুমনি তখন তাদেরকে মা দুর্গার পুজো করার উপদেশ দেন। এরপর রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি দুজনেই দেবীর পুজো করেছিলেন। এটি ছিল প্রথম দুর্গা দেবীর পুজো। রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি যা কিছু হারিয়েছিল দেবীর আরাধনার পর তা সব কিছু ফিরে পান। তারপর থেকে তিনি প্রতি বছর বসন্তকালের চৈত্র মাসে মা দুর্গার পুজো শুরু করেন।
এটি পরবর্তীকালে বাসন্তী পুজো বা চৈত্র দুর্গাপুজো নামে পরিচিত লাভ করে। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন থেকে দশমী দেবী বিসর্জন পর্যন্ত এই 5টি দিন সবাই নিজেদের দুঃখ কষ্ট চিন্তা ছেড়ে দেবীর বন্দনায় মেতে থাকে। तो आपने देखा आस्था से लवरेज एक तरीके से इस पूरे वीडियो को। कुछ और वीडियो से पहले नजर डालते हैं, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जमाना सोशल मीडिया का है, जहां लोग सिर्फ वीडियो और रील्स बनाकर ही नहीं बल्कि अपनी आवाज और कल्पना के दम पर भी पहचान बना रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग की, यानी कहानियां गढ़ने और उन्हें प्रभावशाली तरीके से सुनाने की कला की। तो स्टोरी टेलिंग अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। आज लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कहानियों से लाखों दिलों को छू रहे हैं और साथ ही साथ अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए लाइव ऑडियंस के सामने कहानी सुनाने का ट्रेंड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप भी स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत कैसे करें? तो अगर आपके पास कहने के लिए कोई कहानी है तो उसे दबाइए मत। कंटेंट क्रिएटर राहुल शेख का ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी कहानी ही आपकी पहचान बन सकती है। कैसे? इस वीडियो में देखिए। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है एक तलाश के साथ। एक ऐसी तलाश जिसकी डिमांड मार्केट में तो बहुत है, मगर सप्लाई उतनी ही कम।
तो स्टोरी टेलिंग दो हिस्सों में डिवाइडेड है, स्टोरी एंड टेलिंग। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरीज कई तरीके की होती है, कुछ आपके साथ बीती होती है या सुनी सुनाई होती है, तो कुछ खुद ब खुद बनती है या बनी बनाई होती है। अब कहानियां बनाएं कैसे? तो कहानियां बनाने या सुनाने से पहले कहानियां सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या कहानियों को पढ़ो या देखो, ये आपके क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन लेवल को और भी ऊपर ले जाएगा। अब हमारे रोजाना जिंदगी में लाखों कहानियां हमारे आसपास घूम रही होती हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो, आसपास के लोगों को, आसपास की चीजों को, सभी में कुछ ना कुछ कहानियां मिलेंगी। सम ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स को देखो, उन्हें एनालाइज करो कि आखिर क्या उन्हें औरों से अलग बना रहा है। थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचो। अब टेलिंग पे आते हैं। सबसे पहली चीज जो टेलिंग में इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। किसी भी स्टोरी टेलर के लिए कहानी बताने का तरीका बहुत ही अहम किरदार निभाता है। बिना कॉन्फिडेंस की बातें इमोशनलेस मूवीज की तरह होती हैं। इसलिए आपकी बातों में वो इमोशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशन से एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाते हैं ऑडियंस और क्रिएटर के बीच में। तभी तो सभी फिल्म मेकर्स इमोशंस को मेन प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब आप अपनी कहानी काफी सारे माध्यमों से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे रिटर्न, स्टेज एंड म्यूजिक। वेट, पर आप तो सोशल मीडिया वाले हैं ना, तो आपको चाहिए विजुअल्स। किसी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए खाली लिखने या बोलने की जरूरत नहीं होती। विजुअल्स कैन बी योर यूएसपी। सिनेमैटिक विजुअल्स आपकी वीडियोस को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, किसी फिल्म की तरह। तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। यदि इस वीडियो में 1000 कमेंट्स का एम पूरा हो जाता है। तो ये थी कुछ क्वालिटीज जो कि मेरे हिसाब से एक बेस्ट स्टोरी टेलर बनने के लिए बहुत जरूरी है। बाकी स्टोरी टेलिंग की कोई लिमिट नहीं होती। एट द एंड आवर लाइफ इज अ स्टोरी, और इसमें किरदार और किस्से ये दुनिया खुद ब खुद ऐड ऑन करती जाती है। तो उन्हीं कहानियों को अपने शब्दों या कला के माध्यम से लोग और क्रिएटर्स कॉर्नर में यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और क्रिएटर्स कॉर्नर में अब बात किसानों से जुड़ी हुई। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक ऐसी योजना की है जिसमें उनकी जिंदगी में किया है बड़ा बदलाव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं। इसके तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, जिससे खेती की लागत में काफी मदद मिलती है। हाल ही में 13 मार्च 2026 को ही 22वीं किश्त जारी की गई, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए गए। खास बात यह है कि इनमें 2.15 करोड़ महिला किसान भी शामिल हैं, जो इस योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। अगर शुरुआत से अब तक की बात की जाए तो 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों तक अब तक इस योजना के माध्यम से पहुंचाई जा चुकी है। यही कारण है कि पीएम किसान आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी योजना में गिनी जाती है। इस योजना ने देश भर के किसानों को अपने खेतों में निवेश करने, बेहतर संसाधन जुटाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मजबूती दी है। इसी विषय पर कंटेंट क्रिएटर आस्था पुरी अपने इस वीडियो में विस्तार से बता रही हैं कि आखिर पीएम किसान योजना कैसे काम करती है और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। सोचिएगा, सिर्फ एक क्लिक और किसानों के बैंक अकाउंट में 18,640 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटा अपडेट नहीं है, ये है पीएम किसान की ताकत। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के बैंक अकाउंट्स में भी दिखती है। नाम है पीएम किसान। इसकी अभी 22वीं किस्त आई है, जिसने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। 13 मार्च 2026 को 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किया गया, मतलब सीधा ट्रांसफर, वो भी बिना किसी विचौलिए के। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना भी क्या खास है, तो समझिए। पहले स्कीम्स के पैसे बीच में अटक जाते थे, लेकिन अब सीधा ट्रांसफर होता है, वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी और बिना किसी विचौलिए के।
यही वजह है कि पीएम किसान दुनिया भर की बड़ी डीबीटी प्रोग्राम्स में से एक बन चुका है। चलिए थोड़ा आसानी से समझते हैं। इस स्कीम के तहत एलिजिबल किसानों को मिलते हैं 6,000 रुपए सालाना, जो कि 2000 की 3 किश्तों में मिलते हैं और ये पैसे डायरेक्ट आधार लिंक बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो अभी तक 4.27 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। मतलब ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर दिखने वाला एक इम्पैक्ट भी है। किसानों का कहना है कि वो ये पैसे बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, नई फसल शुरू करने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी, उधार पर निर्भरता कम हुई है। वहीं डेटा की माने तो 90% किसान इन पैसों का खेती में इस्तेमाल करते हैं और 85% किसानों की आय में सुधार भी आया है। सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा सिस्टम स्मूथली कैसे चल पा रहा है? तो आंसर है टेक्नोलॉजी। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड और अब तो फेस ऑथेंटिकेशन भी है। मतलब प्रक्रिया और आसान हो गई है। वहीं किसानों के लिए एआई चैट बॉक्स भी बनाया गया है, ई किसान मित्र, जो कि 24/7 11 भाषाओं में उपलब्ध है। कुल मिलाकर पीएम किसान सिर्फ एक पैसे देने की स्कीम नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, विश्वास और मदद पर रखी गई नींव भी है। 18,640 करोड़ रुपए, 9.32 करोड़ किसान और नो मिडलमैन, बिल्कुल एक साफ और सीधा तरीका। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपने कंटेंट हमें tdnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ टीडी न्यूज़ पर।